رات کا وقت تھا، بغداد کی گلیاں خاموش ہو چکی تھیں۔ بازاروں میں جو دن بھر کی چہل پہل تھی اب اس کی جگہ گہری سناٹے نے لے لی تھی۔ مدھم روشنی والے چراغ کچھ دکانوں کے دروازوں کے ساتھ جل رہے تھے اور کہیں کہیں گلیوں میں دور کسی پہرے دار کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انہی گلیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں علم کے متلاشی طلبہ دن بھر قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسے کے ایک معزز عالم دین تھے جنہیں پورے بغداد میں شیخ عبد الرزاق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک نابینا شخص تھے مگر ان کی بصیرت اور حکمت ایسی تھی کہ بینا لوگ بھی ان سے مشورے لینے آتے تھے۔ شیخ عبد الرزاق اپنی سادگی، ایمانداری اور علم کی روشنی کی وجہ سے سب میں مقبول تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کے وقت مدرسے میں عبادت کرتے، کچھ دیر طلبہ کو نصیحتیں دیتے اور پھر آرام کے لیے چلے جاتے۔ مدرسے میں زیادہ مال و دولت تو نہیں تھا مگر جو بھی تھا وہ سب کی امانت تھا۔ اسی رات جب پورا بغداد نیند میں تھا، 3 چور خاموشی سے مدرسے کی دیوار کے قریب پہنچے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ان کا مقصد مدرسے کا خزانہ لوٹنا تھا جو طلبہ اور مخیر حضرات کی عطیات سے جمع ہوا تھا۔ ایک چور نے آہستہ سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اندھا عالم رہتا ہے۔ اگر ہم احتیاط سے کام کریں تو بغیر کسی مزاحمت کے سب کچھ چرا سکتے ہیں۔ دوسرے چور نے سرگوشی کی، یہ عالم دیکھ تو نہیں سکتا اور یہاں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، ہمیں بس چپکے سے اندر جانا ہے اور جو کچھ ملے لے کر چلے جانا ہے۔ تیسرے چور نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے چڑھ کر اندر جا سکتے ہیں مگر زیادہ آواز نہ ہو ورنہ کوئی جاگ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ ان تینوں نے آہستگی سے دیوار پر چڑھنا شروع کیا، مدرسے کی چھت پر پہنچے اور اندھیرے میں آگے بڑھنے لگے۔ نیچے صحن میں شیخ عبد الرزاق اپنی جائے نماز پر بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ انہیں کوئی خبر نہ تھی کہ 3 چور ان کے ہی مدرسے میں گھس آئے ہیں۔ نولائن چور دھیرے دھیرے مدرسے کے اندر اترے۔ صحن میں ہلکی سی روشنی ایک تیل کے چراغ سے نکل رہی تھی جو مدرسے کے دروازے کے قریب ایک مٹی کے ستون پر رکھا تھا۔ ان کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں مگر سب سے زیادہ وہ اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں مدرسے کا خزانہ رکھا ہو سکتا تھا۔ پہلا چور آہستگی سے بڑبڑایا، ہمیں سیدھا وہاں جانا چاہیے جہاں مال رکھا جاتا ہے۔ دوسرا چور محتاط لہجے میں بولا، ہوشیار رہو، اگر کوئی جاگ گیا تو سارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ تیسرا چور سب سے زیادہ چالاک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے مدرسے کے اندرونی کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے کمرے کے دروازے پر پڑی جو بند تھا۔ وہ اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں ضرور کچھ قیمتی چیزیں ہوں گی۔ تینوں چور چپکے سے دروازے کی طرف بڑھے اور آہستہ سے اسے دھکا دیا۔ دروازہ ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے ایک چھوٹا سا خزانے جیسا صندوق نظر آیا۔ ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہی ہے وہ چیز جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پہلے چور نے سرگوشی کی، دوسرے چور نے جلدی سے آگے بڑھ کر صندوق کو کھولنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے اس پر ہاتھ رکھا اچانک ایک سنجیدہ آواز گونجی، کون ہو تم؟ اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ چوروں کے دل دہل گئے۔ وہ فوراً پلٹے اور دیکھا کہ سامنے شیخ عبد الرزاق کھڑے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی لیے۔ ان کی آنکھیں بے نور تھیں مگر ان کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ چور ساکت ہو گئے۔ پہلا چور بوکھلا کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اندھے ہیں مگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ دوسرا چور سرگوشی میں بولا، شاید ہمیں خاموشی سے نکل جانا چاہیے، مگر تیسرے چور نے جو سب سے زیادہ چالاک تھا آگے بڑھ کر جھوٹ بولنے کی کوشش کی، حضور ہم تو مسافر ہیں اور غلطی سے یہاں آ گئے۔ شیخ عبد الرزاق نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، مسافر؟ اور وہ بھی دیوار پھلانگ کر مدرسے میں داخل ہونے والے؟ تمہیں کیا لگا میں دیکھ نہیں سکتا تو کچھ جان بھی نہیں سکتا؟ چوروں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ یہ نابینا عالم ان کی موجودگی کو کیسے جان گئے۔
मगर वो नहीं जानते थे कि ये सिर्फ नजर की नहीं बल्कि इल्म और हिकमत की रोशनी थी जो हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। चोर हैरत और खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक की आंखें तो बेनूर थीं, मगर उनकी बसीरत जिंदा थी। वो लकड़ी की छड़ी हाथ में लिए बिल्कुल पुरसुकून खड़े थे, जैसे उन्हें पहले ही मालूम था कि चोर यहां आने वाले हैं। तीसरा चोर, जो सबसे ज्यादा चालाक था, हल्की आवाज में बोला, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। ये बूढ़ा हमें नहीं देख सकता। अगर हम खामोशी से निकल जाएं तो कोई नहीं जान सकेगा कि हम यहां आए थे। दूसरा चोर सरगोशी में बोला, मगर अगर किसी ने हमें बाहर निकलते देख लिया तो? ये शहर का मशहूर आलम है। अगर लोगों को पता चला कि हमने उनके मदरसे में चोरी की कोशिश की है तो हमारी खैर नहीं। पहला चोर, जो सबसे ज्यादा घबराहट का शिकार था, लरजती आवाज में बोला, ये आलम हमारे बारे में इतना पुरएतिमाद क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें हर बात मालूम हो। क्या ये वाकई नाबीना है? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक मुस्कुराए और कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया। बात यह है कि मैं अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखता हूं। मैंने तुम्हारी आहट सुन ली थी, तुम्हारे कदमों की सरसराहट, तुम्हारे खौफ की सांसें और तुम्हारे इरादे की बेचैनी सब महसूस कर ली थी। ये सुनकर चोरों के चेहरों पर मजीद खौफ फैल गया। ये बूढ़ा आलम सिर्फ नाबीना नहीं, ये वाकई दाना इंसान है। तीसरा चोर आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कहा, तुम जानते हो कि चोरी करना हराम है, फिर भी तुम यहां आए। तुम्हें क्या लगा था कि यहां कोई नहीं देखेगा? अगर मैं ना भी देख सकता तो क्या तुम्हारा रब भी नहीं देख रहा था? ये जुमला बिजली की तरह चोरों के दिल में उतरा। वो जो पहले अपने फरार के बारे में सोच रहे थे, अब उनके चेहरों पर पछतावे के आसार नुमायां होने लगे। दूसरे चोर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर तीसरा चोर अभी भी अपनी जिद पर था। ये आलम हमें बस बातों से डरा रहे हैं। अगर हम अब भी चाहें तो ये संदूक उठाकर भाग सकते हैं। तीसरा चोर गुस्से से बोला, मगर जैसे ही इसने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, रुको। इनकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि चोर फौरन रुक गए। मदरसे के बाहर हवा में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे पूरी फिजा सुन रही हो कि ये तीन चोर क्या फैसला करेंगे। नूलाइन चोरों के दिलों में अजीब सा इस्तिराब पैदा हो चुका था। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक नाबीना होने के बावजूद जिस यकीन और हिकमत से बात कर रहे थे, वो आम इंसानों के फहम से बालातर था। उनकी आवाज में ऐसा रोब था कि चोर बेइख्तियार साकित हो गए। तुम समझते हो कि अगर मैं नाबीना हूं तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने सुकून से कहा, मगर याद रखो, गुनाह की राह पर चलने वाला हमेशा खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। पहला चोर, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, फौरन शेख के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, हुजूर, हमें मुआफ कर दीजिए। हम शैतान के बहकावे में आ गए थे। हमें नहीं मालूम था कि हम एक ऐसे इंसान के पास आ रहे हैं जो अंधेरे में भी सच्चाई देख सकता है। दूसरा चोर भी शर्मिंदा हो चुका था। उसने भी सर झुकाकर कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह के एक नेक बंदे के पास आकर हमें अपने गुनाहों का एहसास होगा। मगर तीसरा चोर अब भी अपनी जिद पर कायम था। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये सब फजूल बातें हैं। हमें मौका मिला था और हमें फायदा उठाना चाहिए था, मगर तुम दोनों बुज़दिल निकले। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक मुस्कुराकर बोले, अगर ताकतवर होना सिर्फ माल जमा करने में होता तो फ़िरौन हमेशा जिंदा रहता, मगर असल ताकत सच्चाई और ईमान में है, जो तुम्हारे साथियों ने पहचान ली है, मगर तुम अभी भी गफलत में हो। तीसरे चोर ने गुस्से में आकर मदरसे के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने पहला कदम उठाया, इसका पीर एक पत्थर से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके हाथ से चमचमाती खंजर निकलकर एक तरफ जा गिरी और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे ये कोई आम इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुदरत की तरफ से इसे झंझोड़ने के लिए एक इशारा था। पहला और दूसरा चोर हैरत से पीछे हटे और तीसरा चोर तकलीफ के मारे जमीन पर पड़ा था। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, अभी भी वक्त है, लूट जाओ इस रास्ते से जिस पर चलकर तुम्हें तबाही के सवा कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे चोर,
जो अभी तक गुस्से में था, आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर उसकी आंखों में अब भी शिकस्तगी और शर्मिंदगी नुमाया थी। उसने एक लम्हे के लिए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक को देखा और फिर बगैर कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। पहला और दूसरा चोर भी खामोशी से खड़े रहे और फिर एक साथ बोले, हुजूर, हमें भी मुआफ कर दीजिए, हम सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो तुम्हें मुआफ कर देगा। मगर सच्ची तौबा वही होती है जिसके बाद इंसान दोबारा वही गुनाह न करे। ये सुनकर दोनों चोरों की आंखों में आंसू आ गए। हम वदा करते हैं कि आज के बाद कभी किसी का हक नहीं छीनेंगे, बल्कि खुद मेहनत करके कमाएंगे। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह, उनके दिलों को सच्चाई की रोशनी से भर दे और उन्हें गुमराही के अंधेरों से निकाल दे। चोरों के दिल में एक अजीब कैफियत थी। वो जो दौलत की हवस में मदरसे में दाखिल हुए थे, अब शर्मिंदगी और पशेमानी से नजरें झुकाए खड़े थे। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक की नाबीना आंखों में रोशनी तो नहीं थी, मगर उनके अल्फाज ने उनके दिलों को बदल दिया था। पहला चोर, जो सबसे ज्यादा नादिम था, धीरे से बोला, शेख साहिब, हम जैसे गुनाहगारों के लिए वाकई मुआफी है, क्या अल्लाह हमें कबूल करेगा? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर भारी है। अगर तुमने दिल से तौबा कर ली और आइंदा के लिए अपनी जिंदगी बदलने का अहद कर लिया, तो यकीन जानो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। दूसरा चोर, जो अब भी हैरान था, आहिस्ता आवाज में बोला, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चोरी जैसे काम से इतनी बेचैनी मिलेगी। हम समझे थे कि दौलत हासिल करके सुकून मिलेगा, मगर अब लग रहा है कि असल सुकून तो बरकत वाली रोजी में है। शेख ने सर हिलाया, जो रोजी हलाल तरीके से कमाई जाए, इसमें ही बरकत होती है। चोरी और हराम का माल तुम्हें वक्ती खुशी तो दे सकता है, मगर हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। तीसरा चोर, जो अब भी गुस्से में मदरसे के दरवाजे के करीब खड़ा था, एक लम्हे के लिए रुका, फिर पलट कर बोला, और अगर हम तौबा ना करें तो? अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने गहरी सांस ली और कहा, फिर तुम्हें दुनिया में भी बेचैनी मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा। याद रखो, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर तुम्हारे अमाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनकर तीसरा चोर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी मुट्ठियां भींच गईं। वो जानता था कि ये बात सच है, मगर उसका नफस अभी तक उसे गुनाह की तरफ धकेल रहा था। मगर फिर उसने पहला और दूसरा चोर देखा, जिनके चेहरे नदामत से झुके हुए थे। इसे एहसास हुआ कि अगर वो आज भी ना संभला, तो शायद कभी ना संभले। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और बोला, शेख, मैं भी मुआफी चाहता हूं, मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। ये सुनते ही शेख अब्दुल रज़्ज़ाक के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, अल्लाह, उनके दिलों में नेकी डाल दे, और उन्हें सीधे रास्ते पर चला। चोरों ने भी हाथ उठा दिए, उनके चेहरों पर पहली बार सुकून नजर आ रहा था। वो जो माल और दौलत के पीछे भाग रहे थे, आज उन्हें एहसास हो गया था कि असल दौलत ईमान और दियानत में है। चंद लम्हों बाद तीनों चोर मदरसे से निकले, मगर अब वो चोर नहीं रहे थे, बल्कि ताइब होकर नेकी की राह पर चलने वाले बन चुके थे। बगदाद की गलियों में अजान की आवाज गूंज रही थी, जैसे पूरी फिजा भी ये गवाही दे रही हो कि आज रात 3 गुनाहगारों के दिलों में रोशनी आ गई है। नूलाइन, अगर आपको अंधा आलम और 3 चोर की यह खूबसूरत और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी ही तारीखी व इखलाकी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।